चलो आ जाइए। चैप्टर नंबर 6 में कर रही हूं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। इट्स अ स्मॉल चैप्टर, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, फटाफट हो जाएगा। I'll just come down to the PPTs. According to the Companies Act, everyone now please listen. A charge is an interest or a lien that you have created on the property or the assets of the company. Okay, so basically, my dear friends, this definition of charges is not complete in itself. It's been defined as just an interest or any lien. Lien means basically to have the physical possession of the goods till the time a debt due has been repaid. Okay, and this interest or lien, so sometimes you can physically have the asset, or sometimes you just have interest in the asset, like in case of a mortgage or hypothecation. You don't have the physical possession, but you are interested in that particular asset, because if at all that person makes a default, you will be having complete rights over the asset and you will be able to sell that assets and recover your dues. So even a charge can be created by way of a lien. Lien usually happens in case of a pledge, wherein physical possession of the asset is getting transferred. But in case of mortgage and hypothecation, possession is not getting transferred. And this interest or lien is created on the property or the assets of the company or its undertakings. So basically, yes, or both. So this charge can be of three forms. Okay, first, a charge can be by way of a mortgage. A charge can be by way of a mortgage. So look, before the break we completed chapter number 7. After the break we are going on to chapter number 6, and then eventually we will go to chapter number 5. So yesterday we already did 1, 2, 3, 4 और आज हमारा 5, 6, 7 हो जाएगा. 7 तो already हो गया है, तो दो ही बचे हुए हैं, 5 and 6. And before the lunch break, chapter number 6 will also be done, and there will be a short 10 to 12 minutes revision video of 5 sections of dividend chapter. Chapter number 8, okay, of Companies Act 2013. Okay, then you all will be having your lunch break, and then I'll be coming again and we will be completing chapter number 5, also General Clauses Act, and then followed by Swapnil sir. Okay, चलो आ जाइए. ये नमन पूछ रहा था मैम चैप्टर 5 या चैप्टर 6, तो बेसिकली राइट नाउ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6. Don't worry, I will get chapter number 5 also done, but it may just happen we will do it post lunch. But करना तो सब कुछ है, ठीक है. चलो, mortgage जो होता है उसमें क्या होता है, you are creating a charge on the company's immovable property. Okay, of course immovable property है तो possession transfer होने का question arise होता ही नहीं है. It remains with that particular borrower only. So in this case the borrower is always a company, because we are looking at this particular provision according to the Companies Act 2013. तो अगर कंपनी ने अपने लैंड पे, बिल्डिंग पे, हैवी प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज क्रिएट किया है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ मॉर्गेज. मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इट कुड ईदर बी अ प्लेज और अ हाइपोथिकेशन.
प्लेज और हाइपोथिकेशन में दोनों भी केस में चार्ज जो क्रिएट होता है, इट इज क्रिएटेड ऑन द कंपनीज मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, बट द डिफरेंशिएशन इज इन केस ऑफ अ प्लेज the possession is getting transferred, whereas in case of a hypothecation the possession does not get transferred. जैसे कि आप मुथूट फाइनेंस के पास गए और आपने आपकी ज्वेलरी को गिरवी रखा है, तो ज्वेलरी जो है वो मुथूट फाइनेंस के पास ही रहती है जब तक आप आपके ड्यूज पूरे के पूरे रीपे नहीं करते हो. दिस विल बी रिगार्डेड एज अ प्लेज. हाइपोथिकेशन के केस में माय डियर फ्रेंड्स, द पोजेशन कंटिन्यूज टू रिमेन विद द बोरोवर, दैट इज विद द कंपनी ओनली. सिर्फ कुछ पेपर्स और उनके अधिकार हमारे लेंडर के पास, चार्ज होल्डर के पास ट्रांसफर किए जाते हैं, जिनको वो एक्सरसाइज करेगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट. यही जो चार्ज है, इट मे बी ऑफ टू काइंड्स. ओके, इट कुड ईदर बी अ फिक्स्ड चार्ज और अ मूवेबल, ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज. Yes or no, guys? Yes, ma'am. So, fixed charge is usually created on a fixed assets, but this cannot be the actual definition. Okay, this is not holding good every time. Fixed charge is a charge which is created on an identifiable asset. Fixed charge is a charge which is created on an identifiable asset. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वो क्लासरूम है जिसको हमने गिरवी रखा है, ये क्लासरूम आइडेंटिफाइबल है, यस, स्पेसिफिक है, इसलिए इसको कहा जाता है एज अ फिक्स्ड चार्ज. whereas a floating charge is created on a class of assets. Class of assets like finished goods, our debtors, yes, work in progress or the raw material. आज फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट 1 to 100 है, बट कल जाके हम उसको बेचेंगे, वो डेटर बनेंगे, डेटर से कैश मिलेगा, उनका फॉर्म चेंज होते रहता है. बट एक साइड पे जहां पे हमने ये गुड्स को बेचा है, WIP ने भी तो फिनिश गुड्स की जगह ली है ना. तो वी डिड नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन 1 to 100 नंबर्ड गुड्स, वी क्रिएटेड अ चार्ज ऑन दिस क्लास ऑफ एसेट्स, फिनिश गुड्स. कुछ गुड्स आएंगे तो कुछ गुड्स जाएंगे भी, तो ये चार्ज क्रिएट हुआ है ऑन अ क्लास ऑफ एसेट्स, उसी को कहते हैं एज अ फ्लोटिंग चार्ज. लॉ मेकर्स कहते हैं फिक्स्ड चार्ज जो भी एसेट पे क्रिएट किया गया है, उसमें अगर आप डील करना चाहते हो, उसमें अगर आप डील करना चाहते हो, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द चार्ज होल्डर. But such consent is not required in case you want to deal in the asset on which you have created a floating charge. But अब सुनो मेरी बात, floating charge को आप कभी भी directly exercise कर ही नहीं सकते हो. Floating charge first has to be converted into a fixed charge in order to be exercised. This process is known as crystallization of floating charge. What is this known as? Crystallization of floating charge. यही crystallization जो होता है 4 केसेस में होता है. यस, तो जब जब कंपनी ईश्वर को प्यारी हो जाती है तब तक ये क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है. ईश्वर का I is for insolvency, S is for stopped its business, W is for winding and R is for default in the repayment. इन 4 केसेस में पहले आपका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाएगा. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अब जहां पहले आप ये एसेट पे डील कर सकते थे, नाउ यू विल नॉट बी अलाउड टू डील इन दैट एसेट. अब आपका अधिकार बाद में आ गया, पहले हमारे चार्ज होल्डर का अधिकार उन गुड्स पे आ जाता है, क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया है, या तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, या तो कंपनी का बिजनेस स्टॉप हो गया है, या तो कंपनी वाइंडिंग अप के लिए जा रही है. एंड देन वंस this crystallization happens, the floating charge has been converted into fixed charge, and now the company will not be able to deal in that asset. Yes or no, guys? Yes. Ab every kind of charge, okay, whether it is fixed charge or floating charge, does not really make a difference. कोई भी एसेट पे आपने चार्ज क्रिएट किया, चाहे वो टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, every charge needs to get registered with the ROC.
every charge needs to be get registered with the ROC. This charge needs to get registered with the ROC within a period of 30 days from the time it has been created. From the time it has been created. Can you all tell me the form number? CHG1 or CHG9 in case of issue of secured debentures. Secured debentures means you have created a charge on your assets. Yes or no guys? तो जनरल रूल बोलता है, जनरल रूल, every charge that a company has created on its asset, whether tangible or intangible, movable or immovable, in India, outside India, does not make a difference. This charge has to be registered with the ROC within a period of 30 days in form number CHG1 or sometimes in CHG9. अब देखो, suppose 30 दिन हो गए, आपने इस चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये चार्ज को आप अभी भी रजिस्टर करवा सकते हो. बट देखो, लॉ मेकर्स की लैंग्वेज में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज. तो वैसे टेक्निकली अगर देखें इट्स एडिशनल 30 डेज, क्योंकि 30 दिन अब हो चुके हैं और अब हमको 60 दिन मिल रहे हैं. बट 60 दिन कहां से मिल रहे हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज. बट अगर आप यहां पर आरओसी के पास जा रहे हो इन द एडिशनल 30 डेज, एडिशनल 30 डेज, एडिशनल फीस, एडिशनल 30 डेज, एडिशनल, चलो 30 प्लस 30 60 डेज हो गए, अभी भी आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया है. अभी भी क्या आपके पास चार्ज को रजिस्टर करने का मौका है? हाँ, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा sufficient reason, and fees will be on ad valorem basis. And along with that, you will also have to give a declaration that the creditor has not been adversely affected. तभी ये चार्ज जो है आरओसी उसको रजिस्टर करवाएगा. Yes or no guys? सिर्फ इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ. इसमें एक अमेंडमेंट आया था, इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट आया था 77 में. दिस इज सेक्शन नंबर 77, ड्यू टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड. ये सेक्शन वैसे खैर खत्म नहीं हुआ है. हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक जो है, बैंक वो आरबीआई के पास गई. कौन किसके पास गया? क्या बैंकिंग कंपनीज को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? तो आपकी बैंकिंग कंपनी जिसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है वो आरबीआई के पास गई है लोन पाने के लिए. आरबीआई ने कहा है हम आपको फाइनेंस देंगे बट गेट योर प्रॉपर्टी चार्ज. तो अब कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है अपनी एसेट पे, बट हम कह रहे हैं कि आप आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर लोन दे रहे हो इस बैंकिंग कंपनी को, आपको 77 के ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के प्रोविजंस को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सो दीज बैंकिंग कंपनीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 77. अब पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, every charge that is being created has to be registered by the company with the ROC. But अगर 30 दिनों के अंदर हमारे कंपनी ने आरओसी के पास इस चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, then my dear friends, even the charge holder can get the charge registered with the ROC. ये फीस वीस वगैरह दे देगा, but later on he will be able to recover the fees from the company. Because my dear friend, if a charge is not registered, it is considered as if the creditor is an unsecured creditor during insolvency. तो जब कभी भी लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर के लिए ये चार्ज होल्डर माना जाएगा as if he is an unsecured credit. मतलब चार्ज क्रिएट करके भी कोई मतलब नहीं बनाया है. तो यूजुअली if the company does not get the charge registered within 30 days in the act itself, we give the charge holder के हे चार्ज होल्डर तू भी खुद आरओसी के पास जाके इस चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है. Yes or no guys? So this was section number 77. 78 वही चीज कह रहा था कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. बट अगर कंपनी ने इस चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, चार्ज होल्डर इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर कर सकता है और जो भी फीस उसने भरी है
जो कंपनी को भरनी चाहिए थी वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। बट अब देखो, जब चार्ज होल्डर आरओसी के पास जाता है, जब चार्ज होल्डर आरओसी के पास जाता है, तो अब ऐसे केस में आरओसी 14 डेज की शो कॉज नोटिस कंपनी को देती है। हे कंपनी, देखो ये चार्ज होल्डर आया है जो कह रहा है उसने आपको कुछ पैसे दिए और आपकी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है एंड ही वांट्स टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। ये बात सही है या गलत है? हाँ, तो ऐसा कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। उसी के बाद आरओसी विल रजिस्टर दिस चार्ज। नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा बंदा क्या करेगा, आरओसी के पास कंपनी के फेवर में चार्ज रजिस्टर करवा लेगा, भले ही इज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आई बात समझ में? इसलिए आरओसी भी तीसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनेगी। आरओसी मम्मी है, पहले वो बच्चे से कंफर्म करेगी कंपनी से और उसी के बाद ही विल गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। सो दिस वाज 77 एंड टू इट आई लिंक्ड सेक्शन नंबर 78। 79 दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। 79 एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है। आपने ऐसी प्रॉपर्टी को अक्वायर किया है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट है। और एक चीज के बारे में 79 बात करता है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई करना मतलब वेरिएट करना, चेंज करना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने चार्ज क्रिएट कर लिया है, लोन दे दिया है, पैसा इस्तेमाल भी हो गया है, बट अब जिस बेसिस पे लोन दिया गया था उनके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, वेरिएट हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं। जैसे कि आपने एसेट को बढ़ाया है, घटाया है, चेंज किया है, रीपेमेंट का शेड्यूल चेंज किया है, इंटरेस्ट का रेट बढ़ाया है, घटाया है। बट इसमें हमने एक केस देखा था, अगर आपने इंटरेस्ट का रेट फिक्स नहीं किया बट कोई तरीका फिक्स किया है, आरबीआई प्लस 2%, आरबीआई के बेस रेट में अगर चेंज होता है तो वो मॉडिफिकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपको इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो 79 इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ 77 एंड 78। आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी अक्वायर की है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, या तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड चार्ज को आपने मॉडिफाई किया है, तो इसके भी सेम टू सेम प्रोविजंस। 30 दिनों के अंदर आरओसी के पास जाओ, CHG 1 CHG 9 लेके। 30 दिनों में नहीं गए, बट यहां पे सिर्फ डेट ऑफ क्रिएशन के बदले आएगा डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, या तो डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट विच हैज अ चार्ज। 30 दिन नहीं तो एडिशनल 30 दिन, वो एडिशनल 30 दिन में भी नहीं हुआ तो और 60 डेज, फिर एड वल्नरम बेसिस पे फीस, और ये बताना है कि क्रेडिटर जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट 77, 78 एंड 79। ओके, सेक्शन 80 ये कहता है once a charge is registered it will act as a constructive notice that you are aware about the charge that has been created। constructive का मतलब होता है deemed। so basically my dear friends, और notice का मतलब होता है knowledge। so basically now wherever a charge is registered under section number 77, any person who has acquired the asset or the property of the company, it will be presumed, assumed, deemed that he is aware that this asset that he is about to acquire has already been charged in favor of someone। तो किसी को ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। गेटिंग दिस और नो? ये अगर आपको नहीं भी पता है तो माना जाएगा आपको पता है। इट्स अ डीमिंग प्रोविजंस। ऑल चार्जेस दैट आर रजिस्टर्ड विद द आरओसी आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जैसे एमओए और एओए होता है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। एक सेक्शन है जो सीए फाइनल में आप लोग पढ़ोगे 399, जो बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उसमें एमओए और एओए तो है, वो तो आप लोग जानते हो। आर एमओए एंड एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स? Even all these documents which are concerned to the registration of charges are public documents. Are public documents. And therefore, it is a deeming provision that you are aware about the fact that the charge has been registered, created, and ultimately in favor of the charge holder. Yes or no, guys? ऐसे करके 77, 78, 79, 80 हो गया। 82
कंपनी टू रिपोर्ट सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। इस चैप्टर में ना 3 चीजें, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन। क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के प्रोविजंस तो सेम है, सिर्फ थोड़ा सा है जो इसके लिए अलग है, सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। पहली बात तो सैटिस्फैक्शन तभी माना जाएगा जब आपने पूरे के पूरे ड्यूज दिए हैं। पार्ट पेमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सैटिस्फैक्शन। जैसे ही आपने पूरे के पूरे ड्यूज दे दिए चार्ज होल्डर को, कंपनी ने पूरे के पूरे ड्यूज किसको दे दिए? चार्ज होल्डर को, तब कंपनी 30 दिनों के अंदर, 30 दिन फ्रॉम सैटिस्फैक्शन, आरओसी के पास एक फॉर्म फाइल करती है जिसका नाम है फॉर्म नंबर CHG4। कौन किसके पास जा रहा है? कंपनी जा रही है टू द आरओसी। कौन किसके पास जा रहा है? कंपनी जा रही है टू द आरओसी in form number CHG4 within a period of 30 days from the satisfaction of charges। सुनो, अगर आपने 30 दिनों के अंदर इस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर नहीं करवाया है तो क्या सब खत्म हो जाएगी कहानी? आगे उसी में 82 में ही लिखा है, इफ यू डू नॉट गेट दिस सेटिस्फैक्शन रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, you need not worry, you can get this satisfaction registered within a period of 300 days। okay, ये 300 days में you can get this satisfaction registered on the payment of certain additional fees। form number obviously will be the same, CHG4। yes or no guys? and क्या 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 नहीं, सेटिस्फैक्शन के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड, दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन। तो अब सुनो मेरी बात, इसमें भी अमेंडमेंट था बट दैट वाज एन अमेंडमेंट लॉन्ग टाइम बैक 2017 में। पहले 30 था, अभी हमने 30 के बाद डायरेक्टली फिगर दे दिया है 300 डेज। ओके, तो अगर आपने आपके चार्ज को 30 दिनों के अंदर रजिस्टर नहीं किया है तब ऐसे केस में यू कैन ऑल्सो गेट दिस चार्ज सेटिस्फैक्शन का रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज। ये 300 डेज भी कहां से काउंट किए जाएंगे? फ्रॉम द टाइम यू सैटिस्फाइड द चार्ज। सो बेसिकली एडिशनली यू आर गेटिंग 270 डेज ओनली। अरे शो कॉज नोटिस कहां दिख रहा है आपको? हाँ, तो आ रही थी, मैं अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया। आप लिख रहे हो क्या ये? कौन सा? अभी वो नहीं पढ़ा है, वो आगे के सेक्शन में 87 में, 87 पे आए नहीं हम भी, अभी लोग 82 पे ही है। ठीक है, तो सुनो ना एक बात, कंपनी किसके पास आई है? चार्ज नहीं, कंपनी आई है आरओसी के पास कि हे कंपनी, हे आरओसी, देखो देखो हम कितने अच्छे बच्चे हैं, जो भी चार्ज क्रिएट हुआ है वो हमने सेटिस्फाई कर दिया है। अब आप आपके बुक्स में ये चेंजेस करवा लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए ये सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। बट आरओसी ऐसी ही बात नहीं सुनेगा, पहले एक शो कॉज नोटिस, तो SCN इज शो कॉज नोटिस ऑफ 14 डेज टू द चार्ज होल्डर। आरओसी कहेगा हे चार्ज होल्डर, कंपनी मेरे पास आई है और कंपनी कहती है कि उसको जितने ड्यूज आपको देने थे वो उसने ऑलरेडी दे दिए। क्या ये बात सच है? अगर सच नहीं है तो 14 दिनों के अंदर आप इस बारे में मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अगर 14 दिनों के अंदर आपका रिप्लाई नहीं आया ना, हम मानेंगे आपके सारे के सारे ड्यूज ऑलरेडी रीपे हो चुके हैं। ओके, अगर रिप्लाई आया क्या बात है, नहीं आया हम मानेंगे सारे ड्यूज ऑलरेडी चार्ज होल्डर को मिले, इसलिए इज नॉट बॉदर्ड। अगर नहीं मिले होते तो चटका लगता। हाँ या ना? अरे बोलो ना। और उसी के बाद आरओसी जो है इस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करवाएगी। यस और नो गाइस? ओके, 83 बात कर रहा था पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटिमेशन। अच्छा, एक बात सिर्फ रह गया है, जैसे ही आरओसी सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करती है ना,
it issues a certificate CHG5 relating to satisfaction of charges. Okay, जैसे ही चार्ज का satisfaction हो जाता है, company has been given a certificate of registration of satisfaction of charges in form number CHG5. Next 83 बात कर रहा है कि कभी ऐसा हुआ कि आरओसी को पता चला या तो आरओसी को किसी ने बताया प्रूफ के साथ, प्रूफ करके, क्या प्रूफ किया है कि ऐसी कोई एसेट है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया था बट अब इसके ड्यूज ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब ये एसेट के ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएटेड नहीं है। तो ऐसे केस में आरओसी भी खुद होके इस सेटिस्फैक्शन की एंट्रीज अपने बुक में कर सकती है और उसी के बदले में CHG5 सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन कंपनी के नाम पे इशू कर लेगी। सेक्शन नंबर 84, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और अ मैनेजर। तब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन अगर अपॉइंट हुआ है एज अ लिक्विडेटर फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, अब क्या उसको वो कंपनी की एसेट्स को मैनेज करना पड़ेगा, एसेट्स को मैनेज करना पड़ेगा। उसमें से क्या कुछ एसेट्स ऐसी एसेट्स है जिनके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है, अब आपको वो एसेट में डील करना पड़ेगा। इसलिए ये सेक्शन कहता है जैसे ही आप ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर की तरह अपॉइंट होते हो, आप इस बारे में आरओसी को इंटीमेट करो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days इन फॉर्म नंबर CHG6. This was all that was given under section number 84. Next, section number 85 तो है नहीं, 86 कॉन्ट्रावेंशन का है, पनिशमेंट का है, वो आप खुद कर लोगे। 87 इज द लास्ट सेक्शन दैट इज टू बी डन। अब सुनो मेरी बात, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 87 कब अट्रैक्ट होता है, सुन लो मेरी बात। अगर कभी ऐसा हुआ है 300 दिन हो गए, 300, बट फिर भी आपने आपके सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर नहीं करवाया है। कितने दिन हो गए? आपने चार्ज को सेटिस्फाई कर लिया है, आपने चार्ज को सेटिस्फाई कर लिया है, बट अभी तक माय डियर फ्रेंड्स ये नहीं हुआ है कि आपने इसको रजिस्टर कराया है विद द आरओसी। 300 दिन लैप्स हो चुके हैं, 300 दिन लैप्स हो चुके हैं, तो अब क्या आपके पास टाइम है? तो सेक्शन नंबर 87 हाँ कहता है, बट इस केस में आप आरओसी के पास नहीं जाओगे, आप जाओगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर CHG8 और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो मेरा सेटिस्फैक्शन का नॉन रजिस्ट्रेशन था, इट वाज ईदर एक्सीडेंटल और आई हैव सी दिस जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, जिसके वजह से मेरा ये सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करवाना रह गया। प्लीज गेट दिस सेटिस्फैक्शन रजिस्टर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को नोटिस भेजेगी और कहेगी इस बच्चे को माफ किया जाए और इसका सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करवाया जाए। यस और नो गाइज? एक तो 87 इस चीज के लिए अट्रैक्ट होता है, किसके लिए? कि 300 दिन हो गए बट फिर भी आपने सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर नहीं करवाया। और एक चीज के लिए सेक्शन नंबर 87 अट्रैक्ट होता है, अगर आपने किसी चार्ज को रजिस्टर करवाया है या आपने किसी चार्ज को मॉडिफाई करवाया है और क्या हो गया है, आपसे गलती से मिस्टेक हो गई है, कुछ चीजें के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी थी बट आप वो देना भूल गए, या तो आपने वो इंफॉर्मेशन गलत दी, मतलब तब आपको लगता था वो सच है, बाद में आपको पता चला कि ये बात तो सच नहीं है, तो मिसस्टेटमेंट हो गया इन फाइलिंग those documents with the ROC which was relating to creation of charge or modification of charge or satisfaction of charge, तब भी आप सीजी के पास जा सकते हो और माफी मांग सकते हो। तब भी आपको सीजी को बताना पड़ेगा कि ऐसी गलती आपके साथ क्यों हुई, डू यू हैव सम जस्ट ग्राउंड और वॉज इट एक्सीडेंटल, या हुआ तो क्या हुआ। और अगर सीजी को सही लगा वो आरओसी को डायरेक्शंस देगी और उसके हिसाब से आपका जो डेटा है, जो
अगर ओमिट हुआ था वो फिल इन द ब्लैंक्स किया जाएगा, मिस्टेक हुआ था तो करेक्ट किया जाएगा। यही पावर दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 87। so, हाँ इसमें दोगे ना आप? वो प्रिस्क्राइब नहीं किया, वो रूल्स में है, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट यही था सेक्शन नंबर 87। उसके अलावा कुछ चीजें थी जो एक्चुअली सिलेबस में कवर्ड नहीं है। एवरी कंपनी ऑल्सो हैज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। आरओसी भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करता है। एवरी मेंबर कैन इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन बाय आरओसी इंस्पेक्ट करना चाहते हो तो आपको फीस देनी पड़ेगी, बट दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस, सो यू नीड नॉट डू दैट। यू डू ओनली दीज सेक्शंस व्हिच आर एक्चुअली रेलेवेंट। 3 चीजें हैं इस चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन एंड सैटिस्फैक्शन। कौन सी 3 चीजें हैं? ओके कोई भी चार्ज जब कभी भी कंपनी क्रिएट करती है कितने दिनों के अंदर आरओसी के पास फाइल किया जाता है? फॉर्म नंबर बताइए। CHG1। और डिबेंचर्स के केस में 30 दिन में अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, यू हैव 60 days फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्या एडिशनल फीस देना पड़ेगा और सफिशिएंट रीजन भी देना पड़ेगा। 60 days हो गए फिर भी आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, नाउ यू हैव मोर 60 days। एड वल्नरम बेसिस पे आप फीस दोगे, सफिशिएंट रीजन दोगे और डिक्लेरेशन कि हमारा क्रेडिटर एडवर्सली इस चीज से अफेक्ट नहीं हुआ। 30 दिनों के अंदर अगर आपने एज अ कंपनी चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, इवन द चार्ज होल्डर कैन गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी। चार्ज होल्डर ये फीस जो है आपसे रिकवर कर सकता है। अगर आपने आपके चार्ज को रजिस्टर नहीं किया है एज अगेंस्ट द लिक्विडेटर, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ यू आर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आरओसी को भी अगर कुछ प्रूफ मिलता है या पता चलता है कि ये जो चार्ज है वो सेटिस्फाई हो गया है, देन इट कैन on its own motion register the satisfaction of the charges। satisfaction को भी आरओसी के पास रजिस्टर करना होता है within a period of 30 days। 30 डे नहीं तो 100 days from the satisfaction। वो भी नहीं हुआ है तो आप सीजी के पास अप्लाई करने के लिए जा सकते हो, हाँ या ना। अगर आपने कोई एसेट या प्रॉपर्टी खरीदी है जिसको चार्ज क्रिएटेड है, या तो आपने आपके एग्जिस्टिंग क्रिएटेड चार्ज को मॉडिफाई किया है, तो ऐसे केस में इसको भी आरओसी के पास रजिस्टर करना जरूरी है। जैसे ही चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर होता है, देयर इज अ डीम्ड प्रिजम्पशन दैट यू आर अवेयर दैट दिस एसेट हैज बीन चार्ज्ड इन फेवर ऑफ दिस चार्ज होल्डर। सो इट्स अ नोटिस, constructive notice. You have the knowledge, it will be deemed that you have the knowledge about the registration of the charge और वो किसके फेवर में किया गया है। Yes or no guys? This is all about chapter number 6. So now we are on chapter number 5. Okay. Chapter number 5 is talking about acceptance of deposits by companies. Acceptance of deposits by companies. सुनो मेरी बात, पहली बात तो आप ये समझ लो, ये जो चैप्टर है ये किनको किनको एप्लीकेबल और किनको किनको एप्लीकेबल नहीं है। वैसे तो क्या है कि कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा हर किस्म की कंपनी को एप्लीकेबल होता है, बट जहां तक हमारे चैप्टर नंबर 5 की बात है, चैप्टर 5 इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज। Chapter 5 is not applicable to banking companies जैसे कि Axis Bank Limited. Along with that, it is also not applicable to NBFCs, non-banking financial companies like Reliance Capital Limited. It's also not applicable to housing finance companies. Okay, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो अब सवाल ये उठता है, अगर डिपॉजिट्स का ये चैप्टर बैंकिंग कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, तो ये चैप्टर एप्लीकेबल है किसको? इट्स ओनली एप्लीकेबल टू नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
ऐसी कंपनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने एग्जाम्पल्स हम उसमें नहीं जाने वाले। ऐसी कोई भी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी नहीं है और फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, उन्हीं को ये चैप्टर जो है ये एप्लीकेबल होने वाला है। अगर बैंकिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो ये चैप्टर ऐसी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होता है। अब I'll just remove that PPT जो क्लास में किया था मैंने। एक ही मिनट। हाँ, नहीं है। ओ सीरियसली? ओके, सुनो मेरी बात। Every company, okay, every company can accept deposits from its members. Every company can accept deposits from its members. अगर आप मेंबर्स से डिपॉजिट्स के रूप में पैसा एक्सेप्ट करना चाहते हो, यू विल हैव टू फॉलो सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज A to F. ओके, बट नाउ अगर आपकी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहती है, अगर आपकी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहती है, पहली बात तो नॉट एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनीज। मतलब पहली बात तो पब्लिक कंपनी होना जरूरी है, बट हर पब्लिक कंपनी भी पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कोई भी एरी गैरी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी में भी आपकी कंपनी होनी चाहिए एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सबसे पहली बात तो विच कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, पहली बात तो वो पब्लिक कंपनी है। दूसरा, ऐसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो एटलीस्ट 100 करोड़ है, एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट और ग्रेटर है, या तो फिर इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। मतलब आप खुद देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है कि आपकी कंपनी इज रियली डूइंग बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। ऐसी कंपनीज जो है ना वो रिस्क नहीं उठा सकती है, थोड़े से पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए वो डिफॉल्ट करके अपना नाम और अपना फेम कभी स्टेक पे नहीं ले सकती है, और इसीलिए हमने सिर्फ वही पब्लिक कंपनीज को अलाउ किया है जो है एलिजिबल पब्लिक कंपनीज। ओके, सो ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनीज विल बी एबल to accept deposits from the public by following all the provisions given under section number 76. इसका होगा एटलीस्ट साइलेंट पे तो रख के चार्ज करते थे। इट्स ओके। कर दो स्विच ऑफ। आप बोलते नहीं आपके घर वालों को कि क्या 500 करोड़ का डिस्कशन चालू है? ओके, और चलो सुनो मेरी बात। पहले हमने ये देख लिया कि ये चैप्टर किनको किनको अप्लाई नहीं करता है, फिर हमने ये देख लिया कि अगर आपकी कंपनी डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट करना चाहती है, एवरी काइंड ऑफ कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स बाय फॉलोइंग सेक्शन नंबर 73। बट अगर आप पब्लिक के पास जाना चाहते हो, पब्लिक के पास सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज जा सकती है। कौन होती है एलिजिबल पब्लिक कंपनीज? पहली बात तो आप पब्लिक कंपनी हो, और दूसरा आपका जो नेटवर्थ है वो कम से कम 100 करोड़ है, या तो फिर आपका टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिट्स? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिपॉजिट्स? सो दिस डेफिनेशन इज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन, और वो ये कहती है
पहले तो कहती है डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और अ लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी, बट इट डज नॉट इंक्लूड, और फिर कुछ 18-19 पॉइंट्स दे रही है. ओके, तो पहले तो कह दिया हर कोई सम ऑफ मनी दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी either by way of deposit or by way of a loan or by any other form will be deposits. But now the following 18-19 points will not be considered as deposits. अब वो कौन से सारे पॉइंट्स है जिनको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे? सबसे पहली बात तो यस 19 पॉइंट्स है टू बी एग्जैक्ट. चलो, सबसे पहली बात तो एनी अमाउंट दैट यू हैव रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल ऑथोरिटी. तो ये तो सब्सिडी है, तो ऑब्वियसली बात है हम सब्सिडी को डिपॉजिट नहीं. देखो मैं वापस से कहना चाहती हूँ, वी आर लुकिंग एट द एक्सक्लूजन पार्ट. हाँ, कि कौन सी सारी चीजें डिपॉजिट नहीं है. तो पहले हमने कह दिया, पहले every sum of money that is received by the company either by way of deposit or by loan or any other form, आपको जो नाम देना है दे दो, इसको डिपॉजिट माना जाएगा. बट ये 19 चीजें जो है उनको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे. फर्स्ट, एनी अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल ऑथोरिटी. सिर्फ भारतीय गवर्नमेंट ही क्यों, अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने भी आपको कुछ फंडिंग दिया है, इसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे. आपने कोई भी लोन लिया है फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी और फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको भी हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे. इनफैक्ट इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग्स को भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. पहले 5 पॉइंट्स बता दो तो जल्दी जल्दी. एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल ऑथोरिटी, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट, लोन फ्रॉम अ बैंक, लोन फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and inter-corporate borrowings. Yes or no, guys? Then any amount that you have received by issue of commercial papers. Commercial paper is governed by RBI. इसलिए हमने यहाँ से उसको हटा दिया है. हम लोग कहेंगे भाई तू तेरा RBI एक्ट ही फॉलो कीजिए. So no, कट मतलब वैसे कट इन डिपॉजिट्स के सेंस के अगर आपने कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा लाया है तो हम उसको डिपॉजिट्स का चैप्टर एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे. आरबीआई के प्रोविजंस जो है वो उसको कंप्लाई करने पड़ेंगे. कट उस सेंस में दैट ये सारे सेक्शंस उसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है. जो भी पैसा आपको मिला है टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ योर सिक्योरिटीज, हमने कल देखा था हर कंपनी जो पब्लिक इशू के लिए जाती है उसको मिलता है कुछ एप्लीकेशन मनी जो वो रखती है इन सम सेपरेट शेड्यूल बाय. सो दिस इज रिसीट ऑफ मनी बाय द कंपनी. बट ये जो रिसीट ऑफ मनी है बाय द कंपनी, क्या वो डिपॉजिट है? दिस मनी हैज बीन टेकन टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन ऑफ योर सिक्योरिटीज, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स. ऑफ कोर्स यू नीड टू मेक द अलॉटमेंट आफ्टर द प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशूड. अलॉटमेंट अगर पॉसिबल नहीं होता है, यस यू नीड टू रिफंड इट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days. तो वो बात कुछ और है. बट यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, एनी मनी दैट यू हैव रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन towards securities will not be considered as deposits. वापस से मुझे बताओ, आई थिंक वी आर डन विद 7 पॉइंट्स. कौन से 7 पॉइंट्स को हम डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे? एनी अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल ऑथोरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, लोन फ्रॉम अ बैंक, लोन फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग, कमर्शियल पेपर्स, सब्सक्रिप्शन मनी. यस और नो गाइज? इन 7 चीजों को हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे. साथ साथ एनी अमाउंट दैट द डायरेक्टर हैज गिवन टू द कंपनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. उसी में एक्सटेंड करके कहा गया था अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ने अगर कुछ कंपनी को पैसा दिया है उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे. बट दिस पर्सन हैज टू मेक अ डिक्लेरेशन कि ये जो पैसा उसने कंपनी को दिया है इज हिज ओन फंड्स एंड नॉट हिज बोरोड फंड्स. इज हिज ओन फंड्स एंड नॉट बोरोड फंड्स. तो नेक्स्ट बंच में पॉइंट नंबर 8 ये कहता था कंपनी को अगर पैसा मिला है फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स
प्राइवेट कंपनी के केस में पैसा मिला है ईदर फ्रॉम द डायरेक्टर्स और द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर, तो उस पैसे को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, बट उस बंदे को डिक्लेयर करना होगा ये पैसा जो वो कंपनी को दे रहा है ये उसका खुद का पैसा है, ये बोरोड मनी नहीं है। कोई भी पैसा जो आपने रिसीव किया है बाय वे ऑफ इशूइंग ऑफ सिक्योर्ड बॉन्ड्स और सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अरे इसके लिए तो सेक्शन 72 अट्रैक्ट हो जाएगा ना, 72 इज नॉमिनेशन। जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है, सेक्शन नंबर 71। तो अगर इशू ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड ऑलरेडी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है, क्या आप डबल प्रोविजन अप्लाई करोगे, नहीं। तो कोई भी कंपनी ने अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स या सिक्योर्ड बॉन्ड्स इशू किए हैं तब भी ये जो पैसा उसको मिला है by way of issue of debentures or bonds will not be considered as deposits, will not be considered as deposits। उसमें और एक पॉइंट है जो कहता है कि अगर आपने पैसा रेस किया है ओके बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड अनलिस्टेड, तब ऐसे केस में उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। देखो मैं ये 9th वाला पॉइंट वापस रिपीट करना चाहती हूँ। 9th वाले पॉइंट के 2 बच्चे हैं, तो मतलब 2 ही बच्चे हो गए ना 9th के। पहले वाले का नाम नहीं है, दूसरे वाले का ए है। तू खाना खा ले जा, तू बहुत दिमाग लगा रहा है, तो भाई बहन है या माँ बाप है या बच्चे हैं, उस पे लगा तो दिमाग। ओके चलो, बहुत लंबी डेफिनेशन है, मेरे को लगता है डेफिनेशन के बाद ब्रेक ही देना पड़ेगा। सुनो 8th पॉइंट में वापस आ रही हूँ। 8th पॉइंट पे, फर्स्ट 7 पॉइंट्स आपके हो चुके हैं, मेरे को पक्का पता है। 8th पॉइंट कहता है डायरेक्टर अगर कंपनी को पैसा देता है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर ने तो पैसा दिया वो छोड़ दो, उसके साथ साथ डायरेक्टर का रिलेटिव भी अगर कंपनी को पैसा देता है तो उसको भी हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। 9th के 2 बच्चे हैं। पहला वाला पॉइंट कहता है अगर कंपनी ने इशू किए हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स और सिक्योर्ड बॉन्ड्स, तो ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स या सिक्योर्ड बॉन्ड्स इशू करने के बाद जो पैसा कंपनी के पास आया है उसको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, उसको हम डिपॉजिट्स 9th का दूसरा बच्चा कहता है अगर आपने इशू किए हैं लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल मतलब दे आर बोर्न एज डिबेंचर, दे विल डाई एज लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल नॉन सिक्योर्ड लिस्टेड डिबेंचर्स, तब भी ये पैसा जो आपको मिला है विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। 10th वाला पॉइंट कहता है अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको पैसा दिया है बट ये पैसा एम्प्लॉय ने जो आपको दिया है इज बाय वे ऑफ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कल जाके एम्प्लॉय ने कुछ तोड़ा फोड़ी करी, मारा मारी करी, कुछ ऑफिस की प्रॉपर्टी को बिगाड़ा, तो हम ये सिक्योरिटी के डिपॉजिट में से कट करते हैं। बट ये जो पैसा है इज नॉट दिस डिपॉजिट, इट्स जैसे जब आप फ्लैट को रेंट पे लेते हो आप डिपॉजिट देते हो एज ए सिक्योरिटी, वैसा टाइप का आप किससे ले रहे हो, एम्प्लॉय से। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने एम्प्लॉय से लिया है, आप बताओगे डेफिनेशन इधर आके, हाँ तो चुप बैठो और इज्जत से सुनो, या तो बोलो यहाँ पे आके या तो चुप बैठो। हाँ, ये जो एम्प्लॉय से आपने पैसा लिया है बाय वे ऑफ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल नॉट एक्सीड हिज एनुअल सैलरी, शैल नॉट एक्सीड हिज एनुअल। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, चालू हो गया, जो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, जो नॉन इंटरेस्ट पे, सो यू आर नॉट गिविंग इंटरेस्ट टू योर एम्प्लॉय। देखो ये यूजुअली होता है जब आप फ्लैट रेंट पे लेते हो या आप हॉस्टल में जाते हो, तो होटल्स में भी जाते हो, देयर इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट दे टेक फ्रॉम यू बट दे डोंट गिव इंटरेस्ट टू यू अपॉन दैट। ओके, और ये डिपॉजिट जो लिया जा रहा है उसका इंटेंशन कुछ अलग है,
It's not this deposit that we are talking about in this deposit का chapter. It's a security deposit. और इसलिए इस receipt of money को भी हमने deposit consider नहीं किया है. 10 point हमारे हो चुके हैं. 10. आप ये 10 पॉइंट बोल पाओगे? किनको किनको हमने डिपॉजिट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया? एनी सम ऑफ मनी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग, इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, मनी रिसीव थ्रू शेयर या सिक्योरिटीज का एप्लीकेशन मनी मतलब सब्सक्रिप्शन मनी, डायरेक्टर से पैसा आया हुआ, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से आया गया पैसा. 9 के 2 बच्चे, सिक्योर्ड डिबेंचर्स या सिक्योर्ड बॉन्ड्स, non-convertible debentures which are listed and which are not secured, and any money received by the employee by way of a security deposit which is not exceeding his 1 month ka salary, sorry, 1 year का salary which is non-interest bearing. ये सारे amounts जो आपको receive हुए will not be considered as deposits. Next, yes, 10 point हो गए. Any amount that you have received by way of a trust, so you are holding a non-interest amount in trust of someone else as a trustee. तो basically ये पैसा भी actually आपका पैसा नहीं है, आप किसी और के लिए होल्ड कर रहे हो. Okay, it cannot be considered as deposits. Okay, बहुत बार ऐसा होता है कंपनीज जब ट्रांजैक्शंस करती है for the services that it was going to provide or for the goods that it is supposed to supply, it takes advances. जैसे कि जब आपने हमारी क्लास में एडमिशन लिया था, पहले एडमिशन लिया फिर हमने आपको सर्विसेज दी, तो अब ये भी तो रिसीट ऑफ मनी है, बट ये रिसीट ऑफ मनी को क्या हम डिपॉजिट कंसिडर कर सकते हैं? नहीं. सो एनी एडवांस दैट यू रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ योर बिजनेस, ईदर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स or providing of services, okay, and this supply of services, actually supply of goods and providing of services have to be provided to that particular customer within a period of 365 days. तो अगर आपने हमें एडवांस दिया है, ये हमने सर्विसेज आपको साल भर के अंदर ही प्रोवाइड कर ली है. या अगर किसी होलसेलर ने एडवांस लिया है, ये एडवांस के लिए जो गुड्स वो रिटेलर को सप्लाई करने वाला है, these goods have to be supplied within a period of 365 days. 11 पॉइंट कहता है आपने कुछ पैसा होल्ड किया है एज अ ट्रस्टी. 12th पॉइंट कहता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कुछ एडवांस रिसीव किया है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विच विल बी प्रोवाइडेड और सप्लाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज. ये जो एडवांस आपको मिला है विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. नेक्स्ट, एनी अमाउंट दैट द प्रमोटर हैज बॉट इन. सुनो ना, ये प्रमोटर ने क्यों पैसा कंपनी को दिया है? इन परसुएशन ऑफ एनी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बहुत बार ऐसा होता है, स्टार्टअप कंपनीज होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, दे आर नॉट सो कीन इन प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस टू सच कंपनीज. तो तब वो ऐसे कंडीशन डालते हैं कि प्रमोटर तू इतना पैसा डाल तो हम भी आपको कंपनी को इतना लोन देंगे. तो प्रमोटर ने पैसा डाला है, क्यों डाला है? बिकॉज it wanted certain financial institution to provide a loan to the company. पहली बात तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो पैसा दिया है वो लोन के इक्विवेलेंट है, इसलिए वो डिपॉजिट नहीं है. और प्लस प्रमोटर ने भी जो ये पैसा डाला है वो भी लोन की तरह ही है. बस इतना मेक श्योर करना कि जैसे ही आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन रीपे कर दिया, उसके साथ साथ प्रमोटर का इंट्रोड्यूस्ड मनी भी रीपे किया जाना चाहिए. तो ये मनी को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे. Any amount that you received as a trustee, any amount that you received as an advance for supply of goods or provision of service, with these goods and services will be provided within a period of 365 days. Any amount that the promoter has bought in persuasion of any stipulation made by a lending a financial institution, तो इस मनी को भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे. एनी अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय अ निधि कंपनी
और a चिट फंड कंपनी, निधि कंपनी के लिए होता है 406। चिट फंड कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द चिट फंड एक्ट 1982, तो हम उसके प्रोविजंस अप्लाई करने वाले हैं। तो निधि कंपनी को जो पैसा मिलता है, चिट फंड कंपनीज जो पैसा रेस करती है, उन सभी के लिए डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड एनी अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड अंडर अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जहां पे आप सेबी के गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो। तो पार्ट चीज से बताओ अभी, अगली पार्ट ट्रस्टी एडवांस। प्रमोटर ने पैसा लाया है क्योंकि वो चाहता था कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लोन प्रोवाइड करे। निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एक्चुअली 6 पॉइंट मैंने बता दिए। ओके, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मिला है 25 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट। ओके, एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर इज रिसीव्ड बाय अ स्टार्टअप कंपनी। आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है? स्टार्टअप। आपको कितना पैसा मिला है? 25 लाख या उससे ज्यादा। ये जो आपको पैसा मिला है, ये मिला है बाय वे ऑफ अ कन्वर्टेबल नोट, ऑब्वियसली कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, और अगर ये कन्वर्टेबल नोट नहीं है, this note has to be repayable within a period not exceeding 10 years from the date of issue। या तो आप इस नोट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करो, या तो अगर आपको कन्वर्टेबल नोट नहीं देना है तो दिस नोट हैज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और एक ट्रांजैक्शन में ही आपको एक पर्सन से ही 25 लाख या उससे ज्यादा मिले हैं। आपकी कंपनी कैसी कंपनी है? स्टार्टअप कंपनी। कितना पैसा मिला है? 25 लाख या उससे ज्यादा इन अ सिंगल ट्रांच, मतलब इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन बाय वे ऑफ अ कन्वर्टेबल नोट, convertible into equity shares, if not at least repayable within a period of not exceeding 10 years। and along with that, अगर आपको कोई भी पैसा मिला है from an AIF, alternate investment fund, domestic venture capital fund, infrastructure investment trust, real estate investment trust और म्यूचुअल फंड्स, तब भी ये पैसा जो है उसको हम डिपॉजिट के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे। yes or no guys? so all these things will not be considered in the definition of deposits। okay, so just before the break we had seen the definition of the word deposits, plus हमने ये भी देखा था every company can go to its members to raise money in the form of deposits। उसके लिए उसको फॉलो करना पड़ता था सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज A to F। ओके, बट अगर आप पब्लिक के पास से डिपॉजिट्स के रूप में पैसा कलेक्ट करना चाहते हो, every company cannot do that। that can be done only by an eligible public company। तो पहली बात तो कंपनी का पब्लिक होना जरूरी है, प्लस आपका नेट वर्थ शैल एटलीस्ट बी 100 करोड़ और योर टर्नओवर शैल एटलीस्ट बी 500 करोड़। So let us start with the first section, that is relating to section number 77। Sorry, 73। मैं 77 क्यों बोल रही हूँ? ये पूछ रहे थे, चाय नहीं आई ना। Section number 73 which talks about prohibition of acceptance of deposits from the public। सुनो ना मेरी बात। Section number 73 subsection 1 सबसे पहले तो ये बोलता है, अगर आपकी कंपनी पब्लिक से पैसे कलेक्ट करना चाहती है, इट नीड्स टू फॉलो ऑल द प्रोविजंस गिवन अंडर चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का भी टू बी प्रिसाइज सेक्शन नंबर 76। अगर आपकी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट करना चाहती है तो उसको सेक्शन नंबर 76 जो चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है उसके सारे प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे, तभी आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकती है। बट आगे लिखा गया है ये सारा का सारा चैप्टर 5 इट इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये दिया गया है सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 अब ये कहता है, अगर आपकी कंपनी को मेंबर्स से डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट कर रहा है,
क्या हो रहा है यहाँ पे? आपकी कंपनी को मेंबर, कौन सी कंपनी मेंबर से डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट कर सकती है? ऑल द कंपनीज। तो अगर आपकी कंपनी को मेंबर्स से डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट करना है, सबसे पहली बात तो इट विल हैव टू इशू अ सर्क्यूलर। इट विल हैव टू इशू अ सर्क्यूलर। जैसे अगर आपकी पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जाना चाहती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्राइवेट या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट अगर करना चाहती है तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू करती है। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू रेज फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स from your members, you will have to issue a circular in form number DPT1. You will be issuing a circular. किसको इशू करोगे ये सर्कुलर? पब्लिक एट लार्ज को। अगर आप डिपॉजिट के रूप में मेंबर्स से पैसा कलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ये सर्कुलर भी किसको इशू करोगे? मेंबर्स को ही इशू करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है, सबसे पहला कंडीशन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए talks about issuance of the circular form number DPT1 which will be issued to all the members. Second point कहता है ये जो circular आप members को देने वाले हो, this circular yes has to be filed with the ROC. It has to be filed with the ROC within a period of 30 days before the issue of the circular. आपका ये जो circular है जो आप members को distribute करने वाले हो, ये सर्कुलर जो है इट हैज टू बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज बिफोर द इशू ऑफ द सर्कुलर। तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है आपको कंपल्सरी एक रिजर्व क्रिएट करना होगा, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, और यही रिजर्व 20% होना चाहिए ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट्स दैट आर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। और ये जो पैसा है आपको रखना होगा इन अ सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक, एंड दिस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर वन पर्पस एंड दैट इज फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स। इस पैसे को किसी और पर्पस के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 73 सबसेक्शन 2 का ए बी सी हो गया, डी वाला पॉइंट इज ओमिटेड, इट्स नो मोर देयर, सो बेसिकली यू ओनली हैव ई एंड एफ। E कहता है now every company who is accepting money in the form of deposits has to do a certification. Certification about what? That it has not committed any default in the repayment of deposits that it has accepted earlier. मतलब आप सोचो पीछे अगर आपके कंपनी की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने डिपॉजिट के रूप में मेंबर्स से पैसा लिया है और उसके रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, इस सर्टिफिकेशन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि मैं चोर हूं और मैंने इस साल में इतने पैसा का इतने मेंबर्स से चोरी किया था। मतलब कितना बड़ा धब्बा है आपके कंपनी के नाम के ऊपर, कलंक, हाँ या ना? सो यूजुअली नोबडी takes this particular big risk. और एक लास्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज एफ। अगर आपने सिक्योर्ड डिपॉजिट्स इशू किए, यूजुअली डिपॉजिट्स आर नॉट सिक्योर्ड, दे आर अनसिक्योर्ड, बट इफ यू हैव इशूड सिक्योर्ड डिपॉजिट्स तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ओके, ऑफ द कंप्लीट अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट्स एज वेल एज द इंटरेस्ट देयर ऑन। अगर आपने डिपॉजिट्स को पार्शियली सिक्योर किया है या आपने उसको सिक्योर ही नहीं किया है तो आपको स्पेसिफिकली इस बारे में लिखना पड़ता है कि आपके डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड है। इनफैक्ट ये वाला पॉइंट तो ये भी कहता है इवन पार्शियली सिक्योर्ड डिबेंचर्स विल बी टर्म्ड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स ओनली। Even partially secured deposits will be considered as unsecured deposits only. So this is all about section number 73. बहुत सिंपल सेक्शन है। एक बार वापस से मुझे बताओ ना, सपोज इंस्टीट्यूट ने आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछ लिया कि आप वो सारी प्रोविजंस बताइए जो कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सबसे पहली बात तो इशुएंस ऑफ सर्कुलर इन फॉर्म नंबर DPT1। यही सर्कुलर आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज बिफोर द इशुएंस ऑफ द सर्कुलर। आपको DRR क्या है? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करना होगा और यही पैसा सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में आपको रखना पड़ेगा, एंड दिस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर वन पर्पस एंड दैट इज रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स। फोर्थ वाला पॉइंट है नहीं?
अच्छा 30th अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग ईयर तक के जो भी डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे उसका 20% आपको डीआरआर की तरह क्रिएट करना पड़ेगा. डी वाला क्लॉज ओमिटेड है. ई वाला पॉइंट कहता है यू नीड टू गिव अ सर्टिफिकेशन दैट यू हैव नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट यू हैड एक्सेप्टेड अर्लियर. और एक लास्ट पॉइंट कहता है अगर आपके डिपॉजिट सिक्योर्ड है यू नीड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स प्लस द इंटरेस्ट देयरऑन. इवन इफ पार्शियल सिक्योरिटी इज क्रिएटेड दे विल बी टर्म्ड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स. यस और नो गाइस? देखो इसी का एक्सटेंशन ना सेक्शन नंबर 76 है. तो पहले मैं सेक्शन नंबर 76 रिवाइज करना चाहती हूँ. इज दैट ओके विथ ऑल? 76 बात करता है कि अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट करना चाहते हो तो वो कौन से सारे कंडीशंस है जो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे. ओके नहीं ले सकते हो बट आपको सर्टिफिकेशन में लिखना पड़ेगा दैट यू डिड अ डिफॉल्ट. कहाँ है? इसमें थोड़ी ना है. ओके सो सॉरी. तो if in case a default had occurred, the company can make good the default and a period of 5 years had lapsed since the making good of that default. उसके बाद वो deposits accept कर पाएगी. Okay. Yes. Section 76 बात करता है कि अगर आप डिपॉजिट के रूप में पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना चाहते हो. हमने ब्रेक के पहले इस बारे में चर्चा की थी. एवरी पब्लिक कंपनी कैन नॉट रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. ओनली एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन डू दैट. एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या तो उसका क्या बोला मैंने, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है. पहली बात तो अगर आप पब्लिक के पास जाना चाहते हो जो भी 73 सबसेक्शन 2 A to F वाले सारे पॉइंट्स है वो तो आपको कंप्लाई करने ही पड़ेंगे. सो ओवर एंड अबव दैट देयर आर सर्टेन एडिशनल कंडीशंस. वो सारी बातें जो हमने प्रीवियस वाले सेक्शन में देखी थी, अभी जो रिवाइज किया था वो तो कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग्स दैट द कंपनी हैज टू फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोल्यूशन कौन सा लगेगा? यूजुअली इट टेक्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन. यूजुअली ओके बट लॉ मेकर्स ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है. लॉ मेकर्स कहते हैं अगर आपके डिपॉजिट्स प्लस अदर बोरोइंग्स ओके आर लेस देन ओके द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व्स प्लस द सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी बात बन जाएगी. बेसिकली दिस इज द लिमिट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C. तो अगर आपके कंपनी के डिपॉजिट्स along with other borrowings are within the limits specified under section 180 subsection 1 clause C. तो 180 subsection 1 clause C क्या लिमिट देता है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम से ज्यादा आपके बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स नहीं है. मतलब या तो कम है या तो एटलीस्ट इक्वल है, तो OR से बात बन जाएगी. OR से बात बन जाएगी. अदरवाइज द जनरल रूल सेज यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अगला पॉइंट जो कहता है वो ये कहता है यू नीड टू ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग. And this copy of credit rating which you have obtained at least once in every year shall be filed with the ROC in form number DPT3. वापस से सुन लो मेरी बात. क्या बोला मैंने? हर साल ये कंपनीज मतलब कौन सी कंपनीज? एलिजिबल पब्लिक कंपनीज जो पब्लिक के पास गए उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग. और यही क्रेडिट रेटिंग का जो आपने कॉपी ऑब्टेन किया है दिस हैज टू बी फाइल्ड विद द ROC इन द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स इन फॉर्म नंबर DPT3. तो जब आप रिटर्न ऑफ डिपॉजिट सबमिट करते हो इसी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स के साथ साथ कंपनी को क्या करना पड़ता है, ये क्रेडिट रेटिंग जो उसने ऑब्टेन की है उसके बारे में भी आपको ROC के पास फाइल करना पड़ेगा एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर.
अगला जो है पॉइंट वो कहता है अगर आपके डिपॉजिट सिक्योर डिपॉजिट्स है, यू हैव टू मेक इट श्योर दैट अ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन द कंपनीज टैंजिबल एसेट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. ओके, यहां पे हम चार्ज को रजिस्टर करने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आपका चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए. कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट्स. एंड दिस चार्ज दैट यू आर क्रिएटिंग हैज टू बी क्रिएटेड ऑन द कंपनीज टैंजिबल एसेट्स. देखो, इवन इंटैंजिबल एसेट्स आर अ पार्ट ऑफ द कंपनीज एसेट, बट हम कह रहे हैं ये चार्ज हम चाहते हैं दैट यस यू नीड टू क्रिएट इट ओनली ऑन द कंपनीज टैंजिबल एसेट्स. तो एडिशनल ये 3 पॉइंट्स अगर आप कवर कर लेते हो तो आपकी पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल है वो पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा एक्सेप्ट कर सकती है. क्या आप बोल पाओगे सारे कंडीशंस? सपोज इंस्टीट्यूट ने पूछा हमारी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है और वो पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट करना चाहती है, तो क्या आप सारे 73 के along with these 3 conditions आप बोल पाओगे? पहले 73 के A, B, C, E और F बोलो. बोलो. 73 subsection 2 clause A, issuance of a circular, form number DPT1. Very good. This circular has to be filed with the R within a period of 30 days before the issuance of the circular. DRR क्रिएट करना मैंडेटरी है. 20% of the deposits maturing in the following year, this money will be kept in a separate scheduled bank. फिर उसके बाद only used for the purpose of repayment of the deposits. D वाला पॉइंट ओमिट हो गया है. E वाला पॉइंट ये कहता है कि आपकी कंपनी ने सर्टिफिकेट बनाना है रिलेटिंग टू नो डिफॉल्ट in the repayment of the deposits that it has accepted earlier. और अगर आपके डिपॉजिट सिक्योर्ड है आपको सिक्योरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी. इवन इफ दे आर पार्शियली सिक्योर्ड दे विल बी कंसिडर्ड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट. ओवर एंड अबव दैट एडिशनल पॉइंट्स हो गए. रेजोल्यूशन पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन. बट अगर आपके डिपॉजिट्स along with the other borrowings are within the limits of section 180 subsection 1 clause C, you can also pass an ordinary resolution. Every year you need to obtain a credit rating, और ये credit rating जो आपको मिली है has to be filed along with the return of deposits in form number DPT1 DPT3 with the ROC. and next, अगर आपने सिक्योर डिपॉजिट्स इशू किए, चार्ज हैज टू बी क्रिएटेड ऑन योर टैंजिबल एसेट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट्स. तो ऐसे करके ये सारे कंडीशंस कंप्लाई करके आप क्या कर पाओगे? पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा एक्सेप्ट कर पाओगे. अब आपने ये समझ लिया क्या फॉलो करना है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए. आपको ये भी पता चल गया डिपॉजिट्स क्या होता है और डिपॉजिट्स क्या नहीं माना जाएगा. बट अब सबसे मेन क्वेश्चन ये अराइज करता है कि ये जो डिपॉजिट्स है कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो आपके मेंबर्स से या पब्लिक से इन द वे ऑफ डिपॉजिट्स. ऐसा तो नहीं है जितना मन किया उतना पैसा आप डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हो. देयर इज अ लिमिट. ये पापा चार्ट याद आ रहा है कुछ आपको? ओके, तो कितना वो मैक्सिमम अमाउंट है जो आप डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हो, ईदर फ्रॉम योर मेंबर्स और फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज. देखते चलो. देखो जरा, पहली बात तो यहां पे आपको दिख रहा है, सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6. ये जो अलग अलग कैटेगरी की कंपनीज है, ओके, कैटेगरी नंबर 2 3 4 5 और 6, उसमें मैंने बी वाले पॉइंट में दिया है 0.
बेसिकली ए पॉइंट टॉक्स अबाउट कितना आप मेंबर्स से ले सकते हो डिपॉजिट के रूप में, और बी बात करता है कितना आप पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट से। 2, 3, 4, 5, 6 सब में जो है वो बी वाला पॉइंट 0 आ रहा है। क्यों आप बता सकते हो? बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सिर्फ पहला पॉइंट जो है दैट इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो क्या सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा एक्सेप्ट कर सकती है? इसलिए बाकी सारे पॉइंट्स में मैंने बी वाले पॉइंट के लिए 0, 0, 0, 0 लिख दिया है। अब शुरू करते हैं पहली कैटेगरी की कंपनी। अगर आपकी कंपनी इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, नाउ दिस एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन ईदर बी अ गवर्नमेंट कंपनी और अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। क्या गवर्नमेंट कंपनी और क्या नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इस बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो। गवर्नमेंट कंपनी जो है इन टोटैलिटी उसको जितना मेंबर से लेना है ले ले, उसको जितना पब्लिक से लेना है ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन टोटैलिटी इट कैन एक्सेप्ट मनी इक्विवेलेंट टू 35% of the paid up share capital plus free reserves plus securities premium as deposits। अब वो चाहे तो 20% पब्लिक से ले ले, बाकी का 15% मेंबर से ले ले। वो चाहे तो 5% पब्लिक से ले ले, 30% मेंबर से ले ले। जो करना है गवर्नमेंट कंपनी को वो करे। बस इतना आप समझ लो, टोटैलिटी में दोनों का मिला के 35% से ज्यादा आपकी गवर्नमेंट कंपनी, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी, ओके, डिपॉजिट के रूप में पैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। बट ऐसा भी हो सकता है आपकी जो कंपनी है इट्स अ पब्लिक कंपनी, मेरे लिए सुनो, मेरी सर से बात करा ना फिर। चेक। क्या हो रहा है? ठीक है, चलो आ जाओ। हो गया बेटा, मैं वही बोल रही हूँ। अच्छा सर अच्छा करेंगे, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ। मैं नहीं कर सकती वो सब। सर का अपना अलग स्टाइल है, मेरा अपना अलग स्टाइल है। मैं सर नहीं बन सकती और सर मैं नहीं बन सकते, दोनों डिफरेंट है टोटली। उस चीज का क्या संबंध है यहाँ पे, बता मुझे, बताओ। मतलब ये बस बोलने का है बस। एग्जैक्टली नहीं दे सकती मैं। वैसे भी फीमेल और मेल फैकल्टी का बहुत फर्क पड़ जाता है, नॉट पॉसिबल। ऐसे छिचोरी होके मैं नहीं पढ़ा सकती, वो मेरे कैरेक्टर में भी नहीं है। I said a general statement, मेल और फीमेल। मैंने उसके कॉन्टेक्स्ट को देख के बोलना पड़ता है। यू कुछ भी
मतलब आप लोगों के लिए यू कैन नॉट इंटरप्रेट वर्ड्स इन आइसोलेशन. उसके पहले जो शब्द इस्तेमाल किए उसको भी देखो. मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था मेल एंड फीमेल फैकल्टीज को कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा बोला था. कि इधर आ गया. मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है. तुम देख लो, मैंने बोला है मेल और फीमेल फैकल्टीज को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते. कौन सा मेल फैकल्टी छिचोरा ऐसा मैंने नहीं कहा है, ठीक है. आप लोग गलत कर रहे हो. iOS पढ़ा है ना आपने. वर्ड्स को आइसोलेशन में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है वो भी देखना पड़ता है आपको, ठीक है. चलो आ जाओ, आप आ जाओ, चलो. चलो बेशर्मो हो तुम लोग, चुप बैठो, पढ़ाई करो चुपचाप, मेरे को नहीं सुनना है. जाओ. वाह पूरा मेरी बिल्ली मेरे को ही मियाओ. सीरियसली मतलब यार, सच में कलयुग है, कलयुग. कितने बेशर्म हो तुम लोग, बेशर्म. ओके ओके, सुनो मेरी बात, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ चलो. ओके सुनो, आपकी गवर्नमेंट कंपनी जो है ना, वो चाहे पब्लिक के पास जा रही है या मेंबर के पास जा रही है, फर्क नहीं पड़ता. द टोटल अमाउंट दैट इट कैन एक्सेप्ट बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स इज 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व्स प्लस द सिक्योरिटीज प्रीमियम. बट अगर आपकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए हमने बाइफिकेशन किया हुआ है दैट इट कैन एक्सेप्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली अप टू 10% ऑफ द paid up share capital plus free reserves plus securities premium, and from other than members means from the public at large, the remaining that is 25% of the paid up share capital plus free reserves plus securities premium. क्या हर पब्लिक कंपनी एलिजिबल होती है? कैटेगरी 2 उन कंपनीज की बात कर रही है जो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज नहीं है. तो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज पब्लिक के पास, जो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज नहीं है वो पब्लिक के पास नहीं जा सकती, इसलिए बी में मैंने 0 लिख दिया है. बट यस ऑफ कोर्स इट कैन गो टू द मेंबर्स, और मेंबर्स के पास से 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम के रूप में पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं. अब अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, ओके, तो अब प्राइवेट कंपनी जो है, देखो प्राइवेट कंपनी को हमने कितना बड़ा प्रिविलेज दिया है. प्राइवेट कंपनी तो डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट कर सकती है 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम एज डिपॉजिट्स. आपकी अगर स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी है वो भी 100% तक एक्सेप्ट कर सकती है. आपकी अगर प्राइवेट कंपनी है विच इज अ स्टार्टअप एज डिफाइंड बाय DPIIT, वो तो अनलिमिटेड अमाउंट एक्सेप्ट कर सकती है इन द वे ऑफ डिपॉजिट्स. देयर इज नो लिमिट टू सच प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज. और ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसने 3 कंडीशंस पूरे किए हैं. कौन से 3 कंडीशंस? दैट इट इज नॉट एन एसोसिएट और अ सब्सिडरी ऑफ एनी अदर कंपनी. उसके जो आउटस्टैंडिंग लोन्स है दे डू नॉट एक्सीड 2 times द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 crores विच एवर इज लोअर, एंड इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन. ऐसी कंपनीज भी अनलिमिटेड अमाउंट, देयर इज नो लिमिट.
मेंबर्स से उसको जितना पैसा एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट्स के रूप में वो एक्सेप्ट कर सकती है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ, एकदम ध्यान से सुन लो। पहली बात तो सिर्फ दिस कैटेगरी ऑफ पीपल, सिर्फ दिस कैटेगरी ऑफ पीपल, पहला वाला सुन लो आप, कैन एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक। बाकी का 2, 3, 4, 5, 6 ओनली फ्रॉम द मेंबर्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट माय डियर फ्रेंड्स, सुनो ना मेरी बात, अगला वाला जो पॉइंट है वो कहता है भले ही हमने कह दिया every company can accept money in the form of deposits from its members after complying the conditions of section 73 subsection 2 clause A to F, but अगर आपकी company is a company which is either last 4, देखो last 4, अब ये पेन चल रही नहीं है इसलिए last 4, मतलब आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, नहीं चल रहा, आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, या तो प्राइवेट कंपनी है जो स्टार्टअप है, या तो प्राइवेट कंपनी है जो ये तीनों भी कंडीशंस फुलफिल कर रही है, ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स दे ओनली हैव टू फॉलो वन कंडीशन एंड दैट इज सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज एफ। दे हैव बीन गिवन एन एग्जेम्पशन फ्रॉम कंप्लाइंग सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए टू ई, उनको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ क्लॉज एफ भी फॉलो कर दिया तो भी चलेगा। यस और नो गाइज? उसके अलावा बस सिर्फ कुछ एंसिलरी चीजें हैं जो हमारे इस टॉपिक में बचती है। ये 2 मेन सेक्शन है, 2 सेक्शंस जो है वो ट्रांजिटरी सेक्शंस है, तो इसलिए हम वो नहीं करने वाले हैं। ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो चुका है और वो सेक्शन का कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है। टेन्योर, डिपॉजिट्स कम से कम 6 महीनों के होने चाहिए, कम से कम 6 महीनों के होना जरूरी है। एंड द मैक्सिमम टर्म ऑफ डिपॉजिट्स कैन नॉट बी मोर देन 36 मंथ्स। कम से कम कितना? कम से कम बोल रहा है बराबर हो 6 मंथ्स। इतने कॉन्फिडेंस से गलत जवाब दे रहा है और ऐसे आगे 36 मंथ्स, 36 मंथ्स। कम से कम डिपॉजिट्स का टेन्योर जो है वो 6 मंथ्स होना जरूरी है एंड द मैक्सिमम टेन्योर इज 36 मंथ्स। बट यहाँ पे भी थोड़ी सी रिलीफ दी है, अगर आप चाहो डिपॉजिट्स का टेन्योर जो है वो 3 मंथ्स हो सकता है, बट यू नीड टू मेक इट श्योर कि ये जो डिपॉजिट्स है जो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में रीपेबल है, 3 महीने से कम का तो हो ही नहीं सकता है। ओके 6 महीनों से कम का हो सकता है बट मिनिमम 3 महीने। तो ये जो अमाउंट है दिस शैल नॉट एक्सीड 10% of the aggregate of paid up share capital plus free reserves plus securities premium account balance। वापस से बताओ, मिनिमम टर्म कितना है? 6 मंथ्स। ये एमसीक्यू के रूप में आ सकता है। मैक्सिमम इज 36 मंथ्स, बट अगर आप चाहो लेसर देन 6 मंथ्स, ओके, बट 3 और मोर देन 3 मंथ्स का टेन्योर आप रख सकते हो। बट ये जो 3 to 6 मंथ्स वाले जो डिपॉजिट्स है ना, they should not exceed 10% of the paid up share capital plus free reserves plus the securities premium account balance। okay ट्रस्टी आपको अपॉइंट करना जरूरी है अगर आपने डिपॉजिट्स को इशू किया है एंड दीज डिपॉजिट्स आर सिक्योर्ड डिपेंड, हाँ सिक्योर्ड डिपॉजिट्स। और यही डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड इन DPT2। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड is executed in DPT2। ये भी जो डिपॉजिटर है ना, सुन रहे हो क्या, ये भी जो डिपॉजिट ट्रस्टी है, ये डिपॉजिट ट्रस्टी आप अपॉइंट करते हो और उसी की ट्रस्ट डीड जो होती है वो DPT2 में बनाते हो एंड दिस डिपॉजिट ट्रस्ट डीड the company shall execute a deposit trust deed in form number DPT2 at least 7 days before issuing the circular or the circular in the form of advertisement। Circular in the form of advertisement can be issued only by eligible public companies। जब आप पब्लिक के पास
जा रहे हो, तो एटलीस्ट 7 days बिफोर द इशू ऑफ द सर्कुलर डिपॉजिट ट्रस्ट डीड आपका एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए. जैसे कल ना हमने एक प्रोविजन देखा था रिलेटिंग टू कौन कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है. ओके वैसे ही यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं कौन कौन डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकता है. कौन कौन नहीं बन सकता है? आप अगर कंपनी के डायरेक्टर हो, की मैनेजर पर्सन हो या एम्प्लॉय हो, उस कंपनी के या उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी के या उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के या उस कंपनी के एसोसिएट कंपनी के, तब ऐसे केस में आप डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते. यू आर अ डेटर ऑफ द कंपनी और यू आर अ गारंटर ऑफ द कंपनी. यू आर अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, key managerial person or employee of the company, or you have some material pecuniary relationship with the company. थोड़ी बातें वहां पे और यहाँ पे डिफरेंट है. अगर कंपैरेटिव वे में पढ़ोगे तो बातें आपके लिए इजी रहेगी. तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही डिस्क्वालिफिकेशंस हैं. आप कंपनी के डायरेक्टर हो, की मैनेजर पर्सन हो या एम्प्लॉय हो, उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी के, उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के, उस कंपनी के एसोसिएट, या तो आप रिलेटिव हो ऑफ डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन और द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. यू आर द डेटर और यू आर द guarantor or you have some material pecuniary relationship with the company. तब उस केस में आप नहीं बन सकते as a deposit trustee. हाँ या ना? Along with that, my dear friends, we also saw कल जाके अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, क्या उसको लगेगा एक penal rate of interest. ये जो penal rate of interest है, that will be 18% per annum. That will be 18% per annum. So if the company fails to repay its deposits, if the company fails to repay its deposits, उसको लगेगा एक penal rate of interest which will be equivalent to 18% per annum. आपकी जो डिपॉजिट्स है उसके मैच्योर होने के पहले ही डिपॉजिटर अगर आपसे उसका पैसा मांगता है, मतलब प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स. प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. प्री मैच्योर मतलब आपके डिपॉजिट्स अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, उसी के पहले आपने पैसा मांग लिया है, ये आप पैसा मांग सकते हो, बट ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. बट उस केस में जितना कंपनी ने इंटरेस्ट आपको वादा किया था देने के लिए, उतना पूरा इंटरेस्ट कंपनी आपको देगी नहीं. 1% लेस करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा. Yes or no, guys? Sure? 100%? So this is all about chapter number 5.